بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں دیگچی میں چمچہ چلاتے ہوئے دعا کر رہی تھی کہ چچی بس کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ اگر وہ نکل گئی تو مجھے 100 باتیں سنائیں گی کہ ابھی تک تو کام پر نہیں گئی۔ میں صبح ہی صبح ان سے بے عزت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ان کی تو عادت بن چکی تھی کہ بغیر کسی غلطی کے بھی مجھے ڈانٹ دیتی تھی۔ اب تو دن کے 11 بج چکے تھے مگر میں گھر پر ہی موجود تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ آج میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، جس کی وجہ سے گھر کے باقی کام کرنے میں وقت لگ گیا، اور اب کھانا بنا کر میں بس دیگچی میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ یہ دیگچی کافی سالوں پرانی تھی، جس کی وجہ سے اگر تھوڑی دیر بھی اس کے پاس سے ہٹو تو اس میں کھانا جل جایا کرتا۔ میں چچی سے کتنی دفعہ کہہ چکی تھی کہ مجھے دوسری دیگچی لا کر دے دیں، اس میں کھانا اکثر مجھ سے لگ جایا کرتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کا ذائقہ اتنا نہیں ہوتا، اور لوگ بھی میرا پکایا ہوا کھانا شوق سے نہیں خریدتے۔ مگر چچی کو تو بس پیسے سے غرض تھی، وہ ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ ان کی جیب بھرتی جائے۔ کھانا اگر نہیں بکتا تو اس کا الزام بھی مجھے دیا کرتی کہ کھانا تو ذائقے دار بناتی ہی نہیں ہے، بس جان چھڑواتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں تھوڑی دیر باہر دروازہ کھولنے گئی تھی تو واپس آنے پر کھانا اچھا خاصا جل گیا تھا، جس کی وجہ سے چچی نے مجھے غصے میں آتے ہی میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا کہ تو کہاں مری ہوئی تھی، میرا اتنا نقصان کر دیا تو نے۔ آج کے بعد اگر تو نے ایسے کھانا جلایا تو گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسی صورت میں تجھے گھر میں برداشت کر رہی ہوں کہ تو میرے ہاتھ میں پیسے لا کر رکھے گی، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے ایک بوجھ کو اپنے سر پر لا کر بٹھا دوں۔ میرے پاس کون سے خزانے لگے جو تجھے پالتی پھروں گی؟ اس زمانے میں لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنی اولاد کو نہیں پال سکتے، میں تیرے جیسی یتیم لڑکی کو کیوں مفت میں روٹیاں کھلانے لگی؟ چچی کی انہی باتوں سے باہر نکل کر میں کام پر مجبور ہو گئی، ورنہ انہوں نے تو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال باہر کرنا تھا۔ میرے پاس تو ان کے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا۔ پھر میں کہاں جاتی؟ میں چولہے کو ہلکی آنچ پر کرنے کے بعد اپنی چادر لے کر آئی تھی کہ چچی کو کچن میں دیکھ کر میرا چہرہ پھک پڑ گیا۔ وہ دندناتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ او مہارانی، تو ابھی تک گھر میں آرام فرما رہی ہے، کام پر کب جائے گی؟ میں نے ڈرتے ہوئے ان سے کہا کہ چچی مجھے معاف کر دے، میں بس جانے ہی والی تھی۔ انہوں نے بجائے میری سننے کے میرے بال اپنی مٹھی میں زور سے پکڑے اور چلا کر کہنے لگی، اگر آج تو نے کوئی گڑبڑ کی تو میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو کانپ اٹھے گی۔ میں نے اپنے بال ان سے چھڑوانا چاہے مگر انہوں نے سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ درد کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے اتنے زور سے میرے بال کھینچ رکھے تھے کہ میرا چہرہ تکلیف کی شدت سے لال سرخ ہو گیا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ مجھے ایک موقع دے دیں۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے دھکا دیا اور وہاں سے دندناتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دیگچی کو ایک بڑے سے کپڑے میں باندھ کر سر پر رکھا۔ اس کے بعد میں اللہ کا نام لے کر باہر نکل گئی۔ میں نے آج کافی دل لگا کر چاول بنائے تھے۔ مجھے پوری امید تھی کہ آج یہ سارے بک جائیں گے، کیونکہ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ نہ جلیں۔ میں گاؤں کے ایک اسکول کے باہر تھیلے پر دیگچی رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہاں چھٹی ہونے میں کچھ وقت تھا، اسی لیے میں آرام سے بیٹھ گئی۔ اس اسکول کے پیچھے ایک بہت گھنا جنگل تھا، وہاں پر کوئی اتنا نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ کافی گھنا اور سنسان تھا۔ اس کے بارے میں کئی کہانیاں لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی۔ میں اس سخت گرمی کے موسم میں دھوپ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت کہیں پر بھی سایہ نہیں تھا۔ آج موسم کچھ زیادہ ہی گرم ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے گلے میں ایک دم سے پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھنے لگے۔ آج چچی کی ڈانٹ کی وجہ سے میں اپنے ساتھ پانی لانا بھی بھول گئی۔ یہاں تو اس وقت کوئی تھا بھی نہیں جس سے میں پانی مانگ سکتی۔ اسکول کا چوکیدار بھی گیٹ بند کر کے اندر چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ پسینے سے میرا پورا جسم شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس اسکول کی چھٹی 2 گھنٹوں بعد ہونی تھی۔ اگر میں مزید کچھ دیر ایسے ہی تپتی دھوپ میں بیٹھتی تو ادھر ہی بے ہوش ہو جانا تھا۔ اس اسکول کے پیچھے ہی جنگل تھا، وہاں پر میں نے ایک مرتبہ کسی سے سن رکھا تھا کہ ایک جھیل ہے جو کہ شروع میں ہی آتی ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جا کر جلدی سے پانی پی آؤں۔ میں یوں جاؤں گی اور یوں واپس آ جاؤں گی۔ میں اپنے ساتھ اس دیگچی کو لے کر نہیں جا سکتی تھی،
इसी लिए उसको वहीं छोड़कर जंगल की तरफ गई। वैसे भी उस धूप के टाइम कोई यहाँ से नहीं गुजरता था। फिर मैं झील के पास आकर जल्दी से पानी पीने लगी कि एकदम से मेरी नाक में खाने की लजीज खुशबू जाने लगी। ऐसे लग रहा था कि किसी ने कुछ मज़ेदार पकाया हो। यह खुशबू बहुत करीब से आ रही थी। मुझे तशवीश होने लगी कि भला इस जंगल में आखिर कौन खाना पका रहा था। मैं उसे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर एक कोने की तरफ गई, मगर वहाँ पर बहुत सारी देगचियाँ पड़ी देखकर हैरान हो गई। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत बड़ी दावत के लिए खाना पकाया हो। इतना सारा खाना देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। यह खुशबू बहुत अलग किस्म की थी। मेरा दिल चाहने लगा कि वो ज़रा सा खाना चख लूं, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। न जाने किसने इतना सारा खाना बनाया था। मुझे तो दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मगर मैं सर झटक कर जंगल से बाहर की तरफ निकल गई, क्योंकि बाहर स्कूल के करीब में अपनी देगची रख कर आई थी। मगर वहाँ पहुँच कर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सिरक गई, क्योंकि वहाँ पर अब कोई पतीला नहीं पड़ा था। मेरे चेहरे का रंग एकदम से जर्द पड़ने लगा। ऐसे कौन चावलों से भरा पतीला उठा कर ले गया? मैं तो 5 मिनट में ही पानी पीकर वापस आ गई थी। अभी तक तो यहाँ किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। मेरा दिल चची के खौफ की वजह से सूखे पत्ते की मानिंद धड़क रहा था। अगर उनको पता चला कि मैंने उनकी देगची गुमा दी है तो वो तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं, किससे मदद लूं। आजकल के ज़माने में तो कोई सगे रिश्तों की परवाह नहीं करता, फिर भला मेरी कौन मदद करेगा? मैंने स्कूल के चौकीदार से भी पूछ लिया कि उसने यहाँ से किसी को मेरा थैला ले जाते तो नहीं देखा, मगर उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि बीबी, तुम्हें अपनी चीज़ों का खुद ध्यान रखना चाहिए। मैं इधर तेरा नौकर नहीं बैठा जो तेरे सामान की रखवाली करता फिरूं। मुझे अपनी नौकरी के पैसे मिलते हैं तो मैं वही करता हूँ। उस आदमी ने बदलिहाजी से मेरे मुंह पर गेट बंद किया तो मेरी घबराहट से जान निकलने लगी। मैं इधर उधर देखकर कोई हल तलाश करने लगी कि एकदम से जहन में चमका हुआ। उस जंगल में बहुत सारे खाने के पतीले पड़े थे, वहाँ कोई मौजूद भी नहीं था। अगर मैं एक पतीला ले लूं तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं जल्दी से वहाँ पहुंची और सबसे बड़ी देगची उठाकर बाहर ले आई। मैं वो लेकर जंगल से काफ़ी दूर आ गई। यहाँ पर भी काफ़ी रश था। मैंने देखा तो उसमें खुशबूदार बिरयानी थी, जिसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। ऐसी बिरयानी की ऐसी खुशबू थी कि कुछ ही देर में आसपास के लोग आकर मुझसे खरीदने लगे। हर कोई उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। आज तो जैसे मौजज़ा हो गया था कि इतनी फ़रोख्त हो रही थी, वरना आज तक मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो पाए थे। मगर एक बात मुझे अजीब लगी थी कि अब तक कितने ही लोग बिरयानी खा चुके थे, मगर उस देगची से वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं तो जब भी खुद घर में खाना पकाती थी, 20 लोगों के लिए खाने तक वो ख़त्म हो जाता। अब तो ऐसे लग रहा था कि आज तकरीबन पूरा गांव वो खाना खा चुका था। लेकिन पुरस्कार तौर पर वो वैसे का वैसा ही था। ये सब आखिर क्या हो रहा था? ये सब कोई मामूली बात तो नहीं थी। मैंने ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि शायद इसमें बहुत सारा खाना था, इसी वजह से अब तक बाकी खाना बचा हुआ था। मेरी आज काफ़ी कमाई हो गई। चाची कम से कम मुझे बेइज्जत तो नहीं करेंगी। अब मैं खुश थी कि अच्छा ही हुआ जो मेरा पतीला किसी ने चुरा लिया, इसलिए बदले में मुझे ये देगची मिल गई जो मेरे लिए अच्छी साबित हुई थी। मैंने वो देगची उठाई और घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंची तो चची दरवाजे पर ही नज़र रखे बैठी थी। मुझ पर नज़र पड़ी तो जल्दी से मेरे हाथ से पैसे चपट लिए। मैं डर रही थी कि अभी वो मेरे पतीले की वजह से बेइज्जत करेंगी, मगर उन्होंने मुझसे देगची का जिक्र तक नहीं किया। उनको बस पैसे से प्यार था जो उनको मिल चुका था। बाकी उनकी तवज्जो किसी चीज़ पर नहीं जाती थी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि चलो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ, वरना इन्होंने तो सवाल करके मेरी जान आधी कर देनी थी। मैं थकन से चूर हो गई, इसीलिए ऊपर छत पर बने अपने कमरे में आ गई। चाची ने भूले से भी मेरे से खाने का नहीं पूछा। मुझे भूख तो लगी थी, मगर उस वक्त नींद बहुत आ रही थी। मेरे अंदर से हिम्मत ख़त्म हो गई, इसीलिए अपनी भूख को दबाती कमरे में आकर लेट गई। बिस्तर पर सर रखते ही मैं नींद की वादियों में खोती चली गई। अभी मैं नींद में थी कि एकदम ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी कि कहीं चची ने फिर से मुझे न बुला लिया हो।
अगर उनकी पुकार पर ना जाती तो मेरे लिए अलग मुसीबत खड़ी हो जाती। मैं जल्दी से भागती हुई नीचे पहुंची तो चची को अपने कमरे में सोते देखकर हैरत हुई। अगर वो सो रही थी तो फिर मुझे आवाज़ किसने दी थी? फिर उस सब को अपना वहम समझकर दोबारा ऊपर जाने लगी कि मेरी नज़र किचन की तरफ गई जहाँ की लाइट ऑन थी। मैं तो सोने से पहले सारी लाइटें अच्छी तरह बंद करके सोती हूँ, फिर यहाँ कौन आया? घर पर तो सब सो रहे थे, कहीं यहाँ पर कोई चोर तो नहीं आ गया? अगर चची को पता चला कि उनका सामान चोरी हो गया तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगी। मगर जब किचन में दाखिल होकर देखा तो साकित रह गई, क्योंकि मेरा नाम दिया है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी और अनचाही बेटी हूँ। मेरा वजूद बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई अहमियत न रखता हो। मेरा ताल्लुक एक दरमियाने तबके के घराने से था। मेरे अब्बा एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजिम थे। उनकी तनख्वाह से बमुश्किल सब घर वाले एक वक्त की रोटी खा रहे थे। मेरे 2 बड़े भाई थे जो कि मुझसे 10 साल बड़े थे, और एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मेरी पैदाइश पर कोई भी खुश नहीं था। हर कोई यही कहता कि फिर से एक बेटी का बोझ आ गया है। सब अब्बा से अफसोस करते कि पहले ही एक बेटी को कितनी मुश्किलों से इसके घर का किया था। इसके बावजूद बाजी के ससुराल से आए रोज बातें सुनने को मिलती थी। वो लोग बाजी को जहेज साथ न लाने पर हर वक्त ताने देते। अब्बा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बाजी को ट्रक भरकर जहेज भी देते। खानदान भर के लोग बेटी पैदा होने पर ऐसे खफा हो रहे थे कि खुदा न खास्ता कोई मातम कर रहे हों। मेरे पैदा होने पर तो अम्मा भी खुश नहीं थी। सारी बातें और ताने उन्हीं को सुनने पड़ते थे कि तूने इतने अरसे बाद एक और बेटी क्यों पैदा कर दी? अब तेरा शोहर सारी उम्र इसके खर्चे उठाने में ख्वार होता फिरेगा। अम्मा ने तो मुझे इसी वजह से खुद से दूरी रखा। मैं जूं जूं बड़ी होती गई, सबका रवैया अपने साथ पराया सा देखकर खामोश रहने लगी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता था, हर कोई गुस्से से झिड़क दिया करता। मेरे बड़े 2 भाई तो खेतों में होते और काम करते थे। उन्होंने आज तक मुझसे बात नहीं की थी। अब्बा उनके साथ अच्छे से बात करते थे क्योंकि वो उनके वारिस थे, उनके बढ़ापे का सहारा थे। वो काम करके दिहाड़ी कमाते थे, इसीलिए उनको काफ़ी इज्जत दी जाती। बाजी को तो छोटी उम्र में ही अब्बा ने ब्याह दिया। उनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। तब मैं काफ़ी छोटी थी। मेरा तो जैसे उस घर में कोई साथी ही नहीं था। अम्मा को हर वक्त कामों में मसरूफ़ देखा था। वो तो मुझे बस खाने के लिए बुला लेती। इसके अलावा आज तक मुझसे 2 खड़ी बात तक नहीं की थी। बचपन से ये बेरुखी वाला रवैया सहकर मैं बड़ी हुई थी। मैंने आस पड़ोस के लोगों को देखा कि वो अपने बच्चों के कितने नाज नखरे उठाते थे। बेटियों को भी वो इसी चाह में पाल रहे होते थे जैसे बेटों को। बेटियों को तो अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ने उनका रिस्क उनके पैदा होते साथ ही भेज दिया होता है। मगर लोग समझते हैं कि बेटी हो गई है, अब इसके 100 खर्चे होंगे, इनको ब्याह करके रुखसत करना होगा। लोग सोचते हैं कि बेटियां तो एक बोझ होती हैं, वो किसी काम की नहीं होती, बाहर निकल कर कमा नहीं सकती। इस महंगाई के दौर में बेटी होने से अच्छा है औलाद ही ना हो। मुझे ऐसे लोगों की सोच से घिन आती। हमारा पूरा खानदान बेटी होने पर दुखी होता, मगर जब मेरी अम्मा भी मेरे साथ ऐसा सलूक करती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। माँ तो अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा कर रखती है, उसको हर सर्द और गर्म से बचाती है, उसे अपने परों में छुपा कर रखती है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। माँ के होते हुए किसी की जुर्रत नहीं होती कि कोई उसके बच्चे को कुछ कह सके। वो तो खुद भूखी रहकर अपने बच्चे का पेट भरती है, मगर मेरी अम्मा ने तो कभी मेरी तरफ दूसरी दफ़ा नज़र तक नहीं डाली थी। मैं कितनी दफ़ा रातों को डर कर जाग जाती या कोई बुरा ख्वाब देख लेती तो सो नहीं सकती थी, मगर मेरे पास माँ नहीं होती थी। उन्होंने मुझे अलग कमरे में किसी अछूत की तरह रखा था। मेरे खाने पीने का कोई ख्याल नहीं होता। कई बार मैं भूखी सो जाती, मगर कोई झूठे मुंह भी मेरी खबर ना लेता कि मैं बीमार थी या मर गई थी। उनकी बला से मैं कल की मरती आज मर जाती, उनको कोई परवाह नहीं थी। मैंने ऐसे वालिदैन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। मैं हसरत के साथ अब्बा को अपने भाइयों से बात करता देखती। वो बड़ी शफकत से उनके सर पर हाथ रखते और उनको गले लगाते। उनके चेहरे पर उनसे बात करते हुए चमक होती। अब्बा को अपने बेटों पर गुरूर था, जबकि मेरे पैदा होने पर तो उनका सर जैसे शर्म से झुक गया। आस पड़ोस की बातों की वजह से वो मेरी तरफ देखते तक नहीं थे।
मैं उनको घर आने पर सलाम करती तो वो जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते। एक मर्तबा में उनकी फैक्ट्री आने पर पानी का गिलास लाई कि शायद वो मुझे प्यार करें, मगर उन्होंने गुस्से से आते मेरे हाथ से गिलास लेकर ज़मीन पर फेंक दिया और चिल्ला कर कहने लगे कि आज के बाद मेरे सामने अपनी ये शक्ल लेकर मत आना, समझी? जब मैं घर पर हुआ करूं तो मेरे सामने मत आया करो। मैं अब्बा की ये अजियत भरी बातें सुनकर रोती हुई वहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने भूल कर दोबारा अब्बा के सामने आने की गलती नहीं की। मुझे अच्छे से समझ आ गई थी कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मगर अब्बा ने कभी मुझसे प्यार से देखना तक नहीं है। इस घर में किसी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। अम्मा अलग मुझे बेइज्जत कर दिया करती। मेरी वजह से अब्बा उनके साथ भी खिंचे खिंचे से रहने लगे। क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? मैं अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुई थी। मेरा इस दुनिया में आना लिखा था, इसीलिए आज मैं यहाँ थी। अगर अम्मा अब्बा को मेरा वजूद इतना ही नागवार लगता था तो मुझे पैदा होते साथ ही गला दबा कर मार देते। ना उनको मसला होता और ना ही मुझे ऐसी तकलीफदा जिंदगी जीनी पड़ती। मैं वालिदैन के होते हुए यतीमों वाली जिंदगी गुजार रही थी। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा था मैं मर जाती। अब मैं 17 साल की हो गई थी। मेरे लिए रिश्ते तो आते थे, मगर सबकी यही शर्त होती कि उनको भारी भरकम जहेज भी मिले। अब्बा तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। आज तक मेरे लिए एक छोटी सी टॉफी तक नहीं लाए थे। ना ही कभी पूछा था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो भला मेरे लिए क्यों इतना खर्चा करने लगे? मैंने तो बचपन से ही अपनी सारी ख्वाहिशों को दफन कर लिया था। जब मुझे अपने सगे माँ बाप का प्यार, उनकी तवज्जो ही नहीं मिल सकी, तो फिर मैं इन दुनियावी चीज़ों को लेकर क्यों खफा होती? मेरी नज़र में इन सब की कोई अहमियत नहीं थी। असल शय तो रिश्ते होते हैं, जब वही ना मिले तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। मेरे अंदर एहसास कमतरी बचपन से ही था। मुझे हमेशा अपना वजूद एक फालतू और बेकार शे लगता, जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं किसी ट्रक के नीचे आकर मर भी जाती, फिर भी किसी ने मेरे पीछे एक आंसू तक नहीं बहाना था। मैं कुछ दिन से नोट कर रही थी कि अब्बा कुछ खामोशी से रहने लगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी। हर वक्त वो अपने दिल के करीब जगह को दबाते रहते। मुझे ये देखकर कुछ अनहोनी का एहसास होता। मैं चाहती थी कि अब्बा से पूछूं कि उनको क्या हुआ है, मगर मुझे अच्छे से पता था कि इसके बदले में मुझे ही जलील होना पड़ेगा। उनका तो मुझे देखते ही पारा चढ़ जाता, इसलिए मैं खामोश ही रहती। मगर कुछ ही दिन बाद हम सब पर मानो कयामत टूट पड़ी। जब अब्बा एक रात सोए तो अगली सुबह उनकी आंख न खुली। दिल का शदीद दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। अम्मा ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर डाला। सारे जमा हो गए। अब्बा के एक छोटे भाई भी थे, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो और चची भी जनाजे पर आए, मगर चची ने तो आते ही सबको कहना शुरू कर दिया कि अब्बा इस मनूस दिया की वजह से दुनिया से गए थे। जब से ये पैदा हुई थी उनको एक पल का सुख नसीब नहीं हुआ। हर वक्त वो परेशान रहते। इस तरह उनके कहने पर अम्मा ने भी यकीन कर लिया कि वाकई अब्बा मेरी वजह से ही मरे थे। उन्होंने गुस्से में उठकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। कलमुही, अपने बाप की जगह तू मर जाती। तू किस लिए जिंदा है? जब से पैदा हुई इस घर पर मनुष्यत के बादल छाए हुए। तेरी स्याह बख्ती ही मेरे शोहर को खा गई है। मैं बेवा हो गई हूँ। अम्मा मुझे अपने हवास में नहीं लग रही थी। हर कोई मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। किसी ने भी मुझे अब्बा का आखिरी दीदार तक नहीं करने दिया। चची मेरे खिलाफ जहर उगलकर अब मुझे तनफर से घूर रही थी। उनका काम ही आग लगाना होता। हमेशा से जब वो हमारी तरफ आती तो ऐसी ही बातें करके जाती। फिर अब्बा के जाने के बाद से अम्मा भी बिस्तर की होकर रह गई। वो बीमार रहने लगी थी। मैं उनका ख्याल रखती तो वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगती, मुझे खुद से दूर झटक देती। उसके बाद से मैंने किसी से कुछ भी कहना छोड़ दिया। मैं दिल में अम्मा की सेहत याबी के लिए दुआ करती, मगर उनके पास बिल्कुल नहीं जाती थी। उनको मेरा वजूद अब्बा का कातिल लगता था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगती। मैं तो यही कोशिश करती थी कि उनसे दूर रहूं, मगर कुछ ही अरसे बाद मेरे ऊपर दूसरी दफ़ा क़यामत टूटी, जब अम्मा का साया भी मेरे सर पर से छिन गया। यूँ तो मैं अम्मा अब्बा की मौजूदगी में भी यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर अब तो सही मायनों में लावारिस हो गई थी। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था।
घर में बस अब मेरे 2 भाई ही होते थे जो ऐसे थे जैसे मुझे जानते तक ना हो। आज तक कभी उन्होंने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। फिर कुछ ही अरसे बाद उन्होंने शादी कर ली थी। घर में 2 भाभियां भी आ गई थी। उन दोनों की शक्ल देख कर ही लगता था कि उनको मेरा इस घर में होना नागवार लगता था। उन्होंने आते साथ ही मुझे सख्ती से कह दिया कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। वो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देती थी। मैं रातों को छुप छुपा कर बची हुई सूखी रोटी भी खा लेती थी। मुझे यही लगता कि मैं इस दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की हूँ। न जाने मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद था। ना माँ बाप ने मुझे अपनी जिंदगी में कभी बेटी माना, और अब तो जैसे मैं अपने घर में होते हुए भी मुझे ऐसे महसूस होता जैसे मैं किसी पराए घर में रह रही थी। मैं हर नमाज में अपने रब से गिड़गिड़ा कर फरियाद करती कि मुझे उस अजियत भरी जिंदगी से निजात दे। मैं कैसे सारी उम्र उस जगह रह सकती थी जहाँ मेरी 2 टके की इज्जत भी नहीं थी। मगर अभी मेरी आजमाइश बाकी थी। एक दिन मेरी बड़ी भाभी ने मेरे ऊपर पैसे चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि खुदारा भाभी, मेरे ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम मत लगाएं। मैं ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। मगर जब वाकई पैसे मेरे कमरे से मिले तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये सब ज़रूर भाभी ने कोई साजिश की थी। मेरे भाई को उन्होंने मिर्च मसाले लगाकर मेरे ऊपर चोरी का संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। वो तो जैसे उसी मौके की तलाश में बैठे हुए थे। उन्होंने आधी रात को मुझे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई कि खुदारा मेरे साथ ये जुल्म ना करें। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, इस घर की इज्जत हूँ। आप मुझे कैसे अब्बा के घर से ऐसे निकाल सकते हैं? ये मेरा भी घर है। मेरी बातें सुनकर वो कहका लगाकर हंस पड़े। जब अब्बा ने तुझ जैसी कमजात को अपनी बेटी नहीं समझा तो तू किस हक से इस घर में रहने की बात कर रही है? ये घर तो वो अपनी जिंदगी में ही हमारे नाम कर गए थे। मैं फटी आंखों से उनकी बात सुनने गई। अब्बा इतने संगदिल कैसे हो सकते थे? उनको मेरी इतनी भी परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझसे मेरा जायज हक भी छीन लिया। मेरी बाजी तो जो भी था अपने घर की हो चुकी थी। मगर उनको अच्छे से पता था कि मेरी शादी भी नहीं हुई और मेरे भाई मुझे देखना भी गवारा नहीं करते। अब तो वो खुद शादी कर चुके थे और उस घर में वही होता जो उनकी बीवियां चाहती थी। मैं कितनी देर घर के बाहर बैठकर उनको अल्लाह का वास्ता देने लगी, मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। रात का वक्त था। मेरा ऐसे दहलीज पर बैठे रहना खतरे से खाली नहीं था। आस पास से अगर कोई गुजरता तो मुझे मशकूक नजरों से देखता। मैं जल्दी से वहां से उठी और चचा के घर की तरफ रवाना हो गई। इस दुनिया में इस वक्त अगर मेरा कोई सगा रिश्ता बचा था तो वो चचा का घर था। वहां पहुंची तो चची मुझे ऐसे अपने घर में रखने पर बिल्कुल राजी नहीं थी। वो तो हत्थे से उखड़ गई थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, मनहूस लड़की। पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब क्या हमारी जान लेने आई है? तो इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुझे तो हैरत होती है कि तू अब तक जिंदा कैसे है। मैं चची की बातें सुनकर उनके पैरों में बैठ गई। चची, आपको आपके बच्चों का वास्ता है, मुझे यहाँ से ना निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ आपका हर हुक्म मानूंगी। आप जो कहेंगी वो करूंगी। बस मुझे अपने घर के किसी कोने में रहने की जगह दे दें। चचा एक तरफ खड़े काफी गौर से मुझे देख रहे थे। उन्होंने आखिरकार चची को कहा कि अब से ये यहीं रहेगी। मैंने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। चची अपने शोहर की बात मानकर चुप कर गई, मगर उनकी ये खामोशी मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह तो दे दी थी, मगर मुझे अपना गुलाम बना लिया। वो जानवरों की तरह मुझसे काम लेने लगी। उनका बस चलता तो मैं सांस भी उनकी मर्जी से लेती। चाचा ये सब सलूक मेरे साथ होता देखते, मगर मुंह से एक लफ्ज ना कहते। मैं पहले तो ये समझी कि शायद चची का ऐसा जुल्म देख कर वो उनको रोकें। आखिर को मैं उनका खून थी, उनकी भतीजी थी। मगर फिर वक्त गुजरने के साथ मुझे यकीन हो चुका था कि जिस बेटी को उसके अपने घर माँ बाप से प्यार ना मिला तो भला दुनिया वाले क्यों उसका साथ देंगे। ऐसी बेटियां हमेशा माशरे में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकती जिनको उनके घर से ही मान और एतमाद न मिला हो। मैंने भी अब समझौता करना सीख लिया था। उस छोटी सी उम्र ने ही जिंदगी ने मुझे ऐसे दर्दनाक सबक सिखाए कि अब मैं किसी से भी उम्मीदें लगानी छोड़ चुकी थी।
कोई भी मेरा अपना नहीं था। मैं बस हर वक्त अपने रब को याद करती और उसी से मदद मांगती। वही तमाम जहानों का मालिक है, सारी तकलीफें वही दूर करने वाला है। वही ज़ात है जो अपने बंदे की हर पुकार का जवाब देती है, उसकी हर हाल में मदद करता है। वो ये नहीं कहता कि ये तो लड़की है, इसकी कोई अहमियत नहीं, उसके आगे सब बराबर हैं। इंसान अपने रब की नज़र में अपने अमाल से पहचाना जाता है। चची ने मुझे घर में ऊपर छत और एक पुराने से कमरे में रहने का बोल दिया। मैं खुश थी कि चलो अच्छा था, मैं सारा दिन एक कोने में पड़ी रहूंगी, ना चची मुझे देखेंगी और ना ही उनका पहरा हाय होगा। मगर ये बात मेरी भूल साबित हुई, क्योंकि उस रात में उनके घर गई। उसके अगले ही दिन वो मुझे सुबह सवेरे उठाने ऊपर चली आई। उन्होंने मेरे मुंह पर पानी का जग डाल दिया, जिसकी वजह से मैं फौरन से उठ बैठी। तू कहीं की मलका लगी हुई है जो अब तक सो रही है? चल उठ, जल्दी से कुएं से पानी भर कर ला, फिर देर हो गई तो बारी आना बहुत मुश्किल होता है। मैं उनसे पूछना तो चाहती थी कि मेरे आने से पहले वो क्या करती थी, मगर ऐसा करके मैं अपनी जान को अजाब में नहीं डाल सकती थी। इसलिए चुपचाप उठी और बाहर खेतों की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि यहाँ पूरे गांव में बस एक ही कुआं था। अभी फजर की अजान हुई थी, इसीलिए हर तरफ गुप्त अंधेरा ही था। मुझे ऐसे सुनसान खेतों की तरफ जाते हुए डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी कोई भी नजर नहीं आया था। ऐसे अकेली लड़की को तन्हा खेतों में आना उसका खतरे से खाली नहीं था। कोई भी आसपास बदमाश मेरे पीछे पड़ सकता था। मैं जल्दी से दोनों बाल्टियां भरकर घर की तरफ रवाना हुई, मगर वो इस कदर भारी थी कि मुझसे उठाना बहुत मुश्किल हो गया। मैं खुद एक कमज़ोर सी लड़की थी, आज तक कभी ढंग की खुराक भी नहीं मिली थी, क्योंकि बचपन से ही कोई ध्यान रखने वाला था ही नहीं। मैंने खुद से दुगना वजन उठा रखा था। चलते हुए एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे है। मैं बहुत डर गई कि कहीं कोई आवारा आदमी ना हो। मैंने डरते हुए मुड़कर देखा तो मेरा चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गया। पीछे एक स्याह रंग का कुत्ता खड़ा मुझे घूर रहा था। वो एक जंगली कुत्ता था जिसने अपने मुंह से जुबान निकाली थी। मुझे तो बचपन से ही कुत्तों से खौफ आता। अब भी मेरे पास बिल्कुल खड़ा था। उसको देखकर लग रहा था जैसे वो अभी मुझे नोच कर चीर फाड़ देगा। मैंने जो ही उसे अपनी तरफ बढ़ते देखा तो चीख मार कर भागी। वो कुत्ता भी भौंकता हुआ मेरे पीछे ही भागने लगा। मैंने अपने साथ 2 बाल्टी उठाई थी, जिसका पानी आधे से ज्यादा मेरे ऊपर गिर रहा था। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, मेरे जिस्म से चिपक गए। मुझे बस किसी भी सूरत अपनी जान उस खूनख्वार कुत्ते से बचानी थी, जो कि हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मेरा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था आज वो जंगली कुत्ता मुझे नोच खाएगा। उसकी सुर्ख आंखें बहुत खतरनाक थी। मैंने पहले भी बहुत सारे कुत्ते देखे थे, मगर ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। अल्लाह अल्लाह करके मैं घर पहुंची तो चची सहन में ही बैठी हुई थी। मुझे ऐसे भीगे वजूद के साथ अंदर आते देखा तो चिल्लाते हुए पूछने लगी, ये कौन सी आवारागर्दियां करके आ रही है तू? मैंने तुझे पानी भरने भेजा था, ये तू किसके साथ गुलछर्रे मना कर आई है? बोल। चची का इशारा मेरे जिस्म से चिपके कपड़ों की तरफ था। मैंने उनको डरते हुए बताया कि मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था, मैं बहुत मुश्किलों से उस कुत्ते से जान बचा कर आई हूँ। मगर वो तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी। उनका यही कहना था कि जरूर मैं किसी आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। मैं रोते हुए उनसे फरियाद करने लगी कि खुदारा मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगाएं। मुझे अच्छे से पता था कि वो ये सब जानबूझकर मुझे अजियत देने के लिए कर रही थी। उनको अच्छे से पता था कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तो आज तक अपने घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला था। बहुत कम मैं बाहर निकली थी, वो भी मजबूरी की हालत में। मेरी तो गांव में कोई सहेली भी नहीं थी, फिर मैं कैसे किसी यार के साथ गुलछर्रे उड़ा सकती थी? आखिरकार गलती ना होने पर भी मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, तब जाकर उन्होंने मेरी जान बख्शी। उनका मकसद सिर्फ मुझे अजियत देना होता, जिसके बाद वो पुरसुकून हो जाती। मैं उसके बाद कपड़े बदलने ऊपर कमरे में जाने लगी कि एकदम से मेरी नज़र चची के बेटे बिलाल पर पड़ी। वो अपने कमरे की खिड़की से मुझे घूर रहा था। मुझे उसकी गंदी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई। वो मुझे ऐसे हवस भरी नज़रों से घूर रहा था।
اس کے ایسے دیکھنے سے میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں بھاگتی اوپر گئی اور کپڑے تبدیل کیے۔ چچی نے اپنی بیٹی کا کوئی پرانا پھٹا جوڑا مجھے دے دیا تھا پہننے کو۔ میں نے اس کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی۔ اس دن کے بعد سے میں اور بھی احتیاط سے رہنے لگی۔ میری کوشش ہوتی کہ میں کسی بھی طرح بلال کے سامنے نہ ہوں، مگر وہ بھی صدا کا ڈھیٹ آدمی تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے کسی نہ کسی کام کا کہہ دیا کرتا، بہانے بہانے مجھے چھونے کی کوشش کرتا۔ اس کو چچی سے بھی شرم نہیں آتی کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کتنی بری بات ہوگی۔ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو کچھ بھی نہیں کہیں گی، میری تو چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گی۔ ان کو اپنا بیٹا تو دودھ کا دھلا ہوا لگتا تھا، سارے کیڑے وہ دوسروں کی اولاد میں نکالا کرتی تھی۔ حالانکہ بلال کی حرکتوں سے سب واقف تھے، پورا گاؤں جانتا تھا کہ وہ بدماش لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتا تھا۔ اب تو وہ نشے بھی کرنے لگ چکا تھا۔ ہر کوئی اس کی آوارہ گردی سے عاجز آ چکا تھا، کیونکہ گاؤں کی کوئی لڑکی اس کی وجہ سے محفوظ نہیں تھی۔ اس کی جس پر گندی نظر آ جاتی وہ اس کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑتا تھا۔ میں کتنی دفعہ اسے کہہ چکی تھی کہ خوددارا آپ میری جان چھوڑ دیں۔ اب تو چچی کو بھی اپنے بیٹے کی نظر سمجھ آ گئی تھی۔ ان کو کسی صورت یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کا لاڈلا بیٹا میرے جیسی منحوس کے آگے پیچھے پھرے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے باہر کام کرنے بھیجنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی جس قدر وہ پیسے کی پجاری تھی، ان کو یہ کسی طور برداشت نہیں تھا کہ میں ان کے گھر مفت میں رہوں۔ وہ تو آتے جاتے مجھے مفت خور ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ تجھے تو شکر منانا چاہیے کہ ہم نے تجھے گھر میں پناہ دے دی ہے، ورنہ تیرے جیسی بدذات کو تیرے سگے ماں باپ نے کبھی قبول نہیں کیا۔ آج اگر ہم نہ ہوتے تو تجھے باہر انسانی روپ میں چھپے بھیڑیوں نے نوچ کھایا ہوتا۔ چچی کی اسی بات پر میں صبر کر لیا کرتی۔ میں ہر حال میں اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اس نے اب تک میری عزت محفوظ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے گھر میں کھانا بنا کر باہر بیچنے کا کہا تو میں نے ان سے منت کی کہ مجھے ایک نئی دیگچی لے کر دیں جو کہ بڑی ہو۔ یہ تو کافی پرانی ہے اور سالوں سے استعمال کرنے کی وجہ سے اب اس میں کھانا پتیلی سے لگ جایا کرتا تھا، مگر چچی کو صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ انہوں نے مجھے اسی دیگچی میں کھانا بنانے کا کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ جس دن میری دہاڑی جمع ہو جاتی تو چچی مجھے کھانے کے لیے ایک روٹی دیتی تھی، لیکن اگر جس دن کھانا اتنا نہ بکتا تو وہ مجھے سزا کے طور پر بھوکا رکھتی۔ اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی کہ کھانا نہیں بکتا تھا، لیکن یہ بات چچی کو کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ مجھے اگر اس کام کی وجہ سے تسلی ہو گئی تھی کہ بلال سے اب میرا سامنا نہیں ہوتا تھا، میں صبح سے ہی کام پر نکل جاتی اور شام تک واپس آتی۔ وہ شام کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیوں کے لیے نکل پڑتا اور پھر ساری رات باہر گزارتا۔ اسی طرح ایک رات میں کام ختم کر کے کمرے میں جانے لگی کہ مجھے چچا کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ لوگ اب تک کیسے جاگ رہے تھے۔ وہ تو روزانہ 8 بجے ہی سو جاتے تھے، جبکہ ابھی تو رات کے 12 بجنے والے تھے۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ اب تک جاگ رہے تھے، جانے وہ دونوں کون سی کھچڑی پکا رہے تھے۔ تجسس کے مارے میں ان کے کمرے کے دروازے تک گئی تو سمجھ میں آیا کہ وہ سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر سنا تو چچی چچا کو بتا رہی تھی کہ بلال دیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں کسی صورت ایک 2 ٹکے کی لڑکی کو گھر کی بہو نہیں بناؤں گی، میں تو اس کی شکل بھی اس گھر میں مشکل سے برداشت کر رہی ہوں، نہ جانے کیوں آپ نے اس کو مجھے یہاں رکھنے کا کہا ہوا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو اس منحوس لڑکی کو اسی رات گھر سے نکال دیتی۔ چچی کی نفرت بھری باتیں سن کر چچا نے ایک زوردار کہکا لگایا، ارے تجھے کیا لگتا ہے میں نے اسے بتیجی سمجھ کر تھوڑی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے؟ نہ ہی مجھے اپنے بھائی سے کوئی پیار تھا کہ اس کی نشانی کو یوں اپنے گھر لے آتا۔ مجھے کیا پڑی تھی کہ اپنے سر پر ایک اور بوجھ لا کر بٹھا دوں۔ چچا کی بات سن کر چچی نے ایک دم سے پوچھا کہ پھر آپ نے کس وجہ سے اس کو یہاں روک رکھا ہے؟ چچا کہنے لگے، اس گاؤں کا سردار اپنے عیاش بیٹے کے دل بہلانے کے لیے کوئی رکھیل ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو فوراً سردار سے بات کر لی تھی۔ اس لڑکی کو میں اگلے ہفتے سردار کی حویلی چھوڑ آؤں گا، پھر وہ جانے اور اس کا وہ عیاش بیٹا۔
हमारा इस लड़की से फिर कोई लेना देना नहीं होगा। मुझे बस पैसों से मतलब है। वो सरदार मुझे 5 लाख रुपए देने वाला है। तुम दिया को भिनक भी मत लगने देना। अगर उसको पता चला तो वो कोई होशियारी दिखा सकती है, और अगर किसी तरह उसको पता चल गया तो उसको घर में 1 हफ्ते तक कैद रखना। मेरे ऊपर तो जैसे सातों आसमान टूट पड़े थे। आज अपने चचा का इतना भयानक रूप देखकर मैं कांप उठी थी। कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है कि अपने ही भाई की बेटी को किसी के आगे बेच आए। चचा मेरा सौदा गांव के सरदार के आगे कर आए थे। वो मुझे किसी की रखेल बनाने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उनको मेरे बदले लाखों रुपए मिल रहे थे। उनको जरा सा खुदा का खौफ नहीं था कि अल्लाह ने उनको भी एक बेटी दे रखी थी। अगर मेरी जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी वो ऐसा ही करते। मेरी टांगें बुरी तरह से कांप रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने उन दोनों को भिनक भी नहीं लगने दी थी कि उनके गलीज इरादे में जान चुकी हूँ, वरना वो मुझे उसी वक्त घर में ही कैद कर देते। अभी मेरे पास 1 हफ्ता था। मुझे कुछ न कुछ करना था। मैं सारी रात यहाँ से फरार का तरीका सोचती रही, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो इधर किसी को पहचानती भी नहीं थी, किससे मदद लेती। इसी सोच विचार में पूरी रात गुजर गई। सुबह के करीब ही मेरी आंख लगी, जिसकी वजह से उठने में मुझे देर हो गई। चची ने मुझे खूब खरी खरी सुनाई, मगर मैंने मिन्नतें करके उनसे माजरत की और काम पर निकल गई। मैं स्कूल के बाहर बैठी छुट्टी होने का इंतज़ार कर रही थी, मगर अभी काफ़ी वक्त था। मुझे सख्त गर्मी की वजह से प्यास लगी थी। अगर मज़ीद कुछ देर तपती धूप में बैठती तो क्या यहीं पर बेहोश हो जाती। मैं जल्दी से पीछे जंगल की तरफ गई। वहाँ पर एक झील थी जिससे पानी पिया और वापस छोड़ी हुई देगची के पास जाने लगी कि झील के पीछे कुछ लजीज खानों की खुशबू आई। मुझे हैरत हुई कि आखिर यहाँ कौन खाना पका रहा था। मैंने जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारे पतीले पड़े हुए थे। मुझे अजीब लगा, क्योंकि उस जंगल में तो दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। पर ये खाना कौन रख कर गया था? मुझे वो सब कुछ देखकर मुंह में पानी आ रहा था। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि थोड़ा सा खाना चख लूं, लेकिन ये डर भी था कि अगर कोई आ गया और उसने मुझे यूं अपना खाना खाते देखा तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात थी। मैं जल्दी से जंगल से बाहर भागी, मगर वहां पर मेरा पतीला गायब था। मैंने घबरा कर हर जगह देख लिया, मगर मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। ना जाने कौन चोरी करके लेकर चला गया था। अचानक से मेरे जहन में वो जंगल में पड़ा हुआ खाना आया। मैं जल्दी से वहां से एक सबसे बड़ा पतीला लेकर आ गई। मुझे हर सूरत में अपनी दिहाड़ी लेकर जानी थी, वरना चची मेरा भरता बना देती। पुरस्कार तौर पर वो खाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा गांव ही उस चावल को खरीद खरीद कर खा चुका था, मगर उसमें अब भी उतने ही थे। मैंने दिहाड़ी के कुछ पैसे अपने पास उस देगची में छुपा लिए और बाकी के हाथ में पकड़ लिए थे। घर पहुंची तो चची ने मेरे हाथ से पैसे लिए और कमरे में चली गई। मुझे समझ आ रही थी कि ये देगची कोई मामूली देगची नहीं थी, इसमें कोई पुरस्कार ताकत थी। मैंने वो किचन में रखी और ऊपर सोने लेट गई थी। अभी मेरी आंख लगी थी कि कुछ अजीब सी आवाज़ आई। मुझे नींद में ही लगता था कि जैसे कोई दिया कहकर पुकार रहा था। मैं नीचे पहुंची तो सभी सो रहे थे। मैंने डर कर किचन का रुख किया, क्योंकि वहां की लाइट जल रही थी, मगर सामने का मंजर देखकर तो मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कोई हेयोला किचन की खिड़की से बाहर जा रहा था। मैं उसके पीछे जाने लगी थी, मगर साथ में उस देगची को भी उठा लिया। उसमें मैंने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। मैंने उस हेयोले को आवाज़ दी कि तुम कौन हो? तो वो रुक कर कहने लगा, मैं जिनजाद हूँ। आप हमारी दावत की देगची उठा कर लाई थी, मगर जब मैंने उसमें पैसे रखे देखे तो वहाँ से वापस आ गया था। जब जिन्नाती देगची में कोई इंसान पैसे रखता है तो वो उस इंसान की हो जाती है। ये एक पुरस्कार पतीला है, आप इसकी मदद से बहुत ज़्यादा अमीर हो सकती हैं।
میں پہلے تو اس جن ذات کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی، مگر جب اس نے کہا کہ میرے پاس بھی دولت آ سکتی ہے تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ مجھے کسی بھی صورت میں چچا کے چنگل سے جان چھڑوانی تھی۔ پھر میں وہ جناتی دیگچی لے کر شہر میں آ گئی تھی اور وہاں اپنا خود کا ایک ڈھابا کھول لیا اور اپنی ایک پرسکون زندگی جینے لگ گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔